Republic. Report, ladies and gentlemen, we're cutting across all formats to go straight to the pictures in Delhi as Hindus come out on the streets of the national capital, specifically outside the Bangladesh High Commission, to tell the UNIS government that we're all angry with what happened with Deepu Chandra. Let's go straight to the pictures coming in. These are pictures from the High Commission in Bangladesh, the Bangladesh High Commission in Delhi, and Hindu groups, thousands of them, are right outside the Bangladesh High Commission. And we are going across straight to our correspondent Prem outside the Bangladesh High Commission. Prem, over to you. He's speaking to the people who are there, the Hindu groups who are there, and Indians who are angry with what has happened. They will burn this effigy. There are about 100 to 200 protesters who have arrived out High Commission to register their protest against the Bangladeshi minority Hindus, the Hindus who has been suffering from the atrocities from the Bangladesh government, the UNIS government, who has failed to give justice to the minority Hindus who are residing. We are right outside the Bangladesh High Commission, and about 100 to 200 protesters have gathered outside the Bangladesh High Commission to register their protest. Bangladesh government who has failed to give protection to the minorities, to the Hindus who are residing in Bangladesh. Remember, viewers, we have seen some days before that a Hindu has been beaten, and after beating the protesters in Bangladesh, have mercilessly killed that Hindu, have burned them alive. Now, in protest of that, we can see right outside the Bangladesh High Commission, the protesters have arrived and they have brought in effigy. They have brought in an effigy of the Bangladesh government, which they will soon going to burn to register their protest against the failed UNIS government, who hasn't delivered justice to the Hindus, who have failed to deliver justice and protection to the Hindus. We will also try to talk to some protesters. Sir, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आप लोगों की क्या मांगे? अरे भाई साहब, आप लोगों की क्या मांगे हैं? शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में सुरक्षित किया जाए, उनकी इज्जत आबरू को सुरक्षित किया जाए, और हमें बांग्लादेश के पर वहाँ हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, उनसे इंसाफ मांगे और जो उचित कदम हो वो उठाया जाए। ये जो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट, बांग्लादेश यूनिस गवर्नमेंट, और ऐसे जला दिया जा रहा है हिंदुओं को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत से यही चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट, लेकिन ये कार्य है जो जाए। बांग्लादेश गवर्नमेंट, देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में पहले भी हिंदुओं को तड़पा कर नरसंहार किया गया, और फिर एक बार फिर दीपू नाम के एक हिंदू को तड़पा कर मारा, और उसके बाद भी उसकी लाश को तड़पा के मारा, और फिर आग लगा दी। ये डराने का काम किया, हिंदुओं को डराने का काम किया है। हिंदू डरेगा नहीं, हिंदू लड़ेगा, और बजरंग दल के माध्यम से सभी हिंदुओं को एक करने का काम किया जाएगा, संदेश देने का काम किया जाएगा कि अब नहीं जागे तो कब जागोगे। And they have brought in an effigy of the Bangladesh government, and they are beating the effigy, and they will soon protesting outside the Bangladesh High Commission. About 100 to 200 protesters gathered outside the Bangladesh High Commission, and sometime before there was a scuffle which broke out between the protesters and the armed forces. Some protesters have also been detained in the bus brought in by the armed forces, and now और एक होना पड़ेगा, नहीं तो वो हिंदू रहेगा नहीं। अभी भारत में है, हमारी कंधार तक था हमारा देश, पर अब सिमट के सिर्फ भारत में और इसमें नेपाल में रह गया है। उसके लिए हमें हिंदुओं को एकत्र होना ही पड़ेगा। जो बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं, उनकी भी उम्मीदें जो है वो भारत सरकार से ही है कि भारत सरकार जो है वो इंटरवीन करे, उन्हें सुरक्षित जो है भारत लेके आए, या फिर वहाँ पे स्थायी समाधान जो है वो दिया जाए।
पहले तो वहाँ के हिंदुओं को खुद उठना पड़ेगा, अपने उठे बिना काम नहीं चलेगा। पहले उनको डरना नहीं है, जो नहीं डरेंगे तो भारत सरकार भी उनका, हम लोग भी यहाँ से वो कर रहे, समर्थन कर रहे हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, तो मतलब कि सरकार भी फिर करेगी ही। मैम, हमारा सरकार हमारा साथ दे रहा है और देंगे। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसलिए हम सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर हूँ। ये हमारा बैनर, हमारा कम से कम 400 से 500 लोग आया और इसलिए हम धरना दे रहा है। और बांग्लादेश में जो काम किया उसको जिंदा जला दिया से आए हैं। हम दिल्ली से ही है, दिल्ली से बिलोंग करता है हम। और जिहादियों को बताना चाहते हैं अब युद्ध होगा, महाभारत काल से भी बड़ा युद्ध होगा। आप तो घेराव करने के लिए आया, क्यों? हम दिखाना चाहते हैं हम हिंदुत्व एक है, पुलिस आगे जाने हिंदू बंगाली सब एक है। पुलिस आगे नहीं जाने दे रही। हम कोशिश करेंगे जाने की, हम पुलिस बहुत अच्छा काम कर रहा है, पुलिस के साथ हूँ, पुलिस हमारा साथ दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशन है, जो वहाँ तत्कालीन सरकार है कट्टरपंथियों पे नकेल लगाए और भारत के अंदर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी को बाहर निकालना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ की सरकार कट्टरपंथियों की हाथ की कठपुतलियां बनी हुई है, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। Staying with those live pictures, ladies and gentlemen, that's Republic TV's Prem, who's there speaking to the Hindu groups who are there. They're trying to push ahead, promising to push ahead. And thousands of them are there, trying to break the barricades, warning Dhaka that they are ready to push ahead. Let's cut across live. We have two cameras, multi-cameras. Prem and Komal, live outside the Bangladesh High Commission. Let's go across back to the live feed. In Bangladesh, and barricading has also been put on the protesters. The protesters are trying to breach the barricades, but the Delhi police and the armed forces have successfully tried to bring the situation in control. ऐसे में उन्हीं कट्टर इस पुतले की तरफ से जो है जरिए दिखाया गया, दर्शाया गया और अब इस पुतले को जो है वो यहाँ पे जला दिया गया है। साफ तौर पर इन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे। यूनुस जो है, देखिए जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस, उनकी फोटो भी है, उसे भी जलाया जा रहा है। बांग्लादेश का पुतला फूका, उनकी फोटो जो है उसे जलाई जा रही है। और ऐसे में साफ तौर पर अल्टीमेटम यही है कि अगर अब हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में छेड़छाड़ होता है तो अब नहीं छोड़ा जाएगा उन्हें और अब ये शांत नहीं बैठेंगे। और केवल वहाँ ही नहीं बल्कि जो हिंदुस्तान में जो बांग्लादेशी बैठे हैं, घुसपैठी है, उनको भी बाहर करना है, उन्हें भी टोटल जो है बॉयकॉट करना है। अपने जो प्ले कार्ड्स है वो लेके पहुंचे हैं, उसके माध्यम से ये मैसेज जो है वो यहाँ पे लोग जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए काफी जगह कौन सी है, कौन सा जगह कौन सी? तो देखिए कुछ अराजक तत्व जो है वो भी इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं और जो है माहौल खराब करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से की जाए, इसलिए जो हाँ जी, अराजक तत्व जो है उनकी तरफ से कोई गलती यहाँ पे जो है मिस्टेक ना किया जाए, कोई माहौल ना बिगाड़ा जाए, उसको लेके भी आप लोग पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल, हम यहाँ पे हर चीज़ की पहचान करते हैं और यहाँ कोई अराजक तत्व नहीं है। यहाँ जो आया है उसके सीने में दर्द है, उसकी रूह कांप रही है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, यहाँ आने वाला अराजक तत्व नहीं, यहाँ आने वाला बजरंग दल का कार्यकर्ता है, जो धर्म के लिए आया है, जो देश के लिए आया है, जो हिंदू माता और बहनों के लिए आया है। क्या मांग करेंगे सरकार से? देखिए हर दो महीने में जो तस्वीर निकल के सामने आती है वो झकझोर कर रख देती है। सवाल यही है कि आखिर हिंदू होना गुनाह हो गया बांग्लादेश में? ये जो प्रदर्शन है ये सरकार के खिलाफ नहीं है, ये प्रदर्शन बांग्लादेश की उस खिलजी जिहादी मानसिकता के खिलाफ है। हम बांग्लादेश के उस जिहादी मानसिकता की सरकार को ये चेताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि एक समय था जब तुमने हमसे सुरक्षा मांगी थी, पर आज हमारा हिंदू भाई वहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी हिंदू बहन बूढ़े बच्चे वहाँ सुरक्षित नहीं है। तो भारत के लोग, बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे देश में हिंदुओं को एक करने का काम कर रहे हैं और उस
जिहादी मांग तक की सरकार और वहाँ के रहने वाले कट्टरपंथियों को चेताना चाह रहे हैं कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और जिस तरह से बांग्लादेश को एक आज़ादी हमने दिलवाई थी, तो ऐसे में ये इन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि हमें कमज़ोर बिल्कुल ना समझे। कहीं से भी हिंदुस्तानी जो है वो कमज़ोर नहीं है। और यहाँ पे एक बार फिर से अलग अलग संगठन के लोग पहुँचे हुए हैं। फिलहाल देखिए जो इनके जो लीडर्स हैं, जो संत महात्मा है, वो आगे मौजूद है। वो पुलिस से बात कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें जो है आगे जाने दिया जाए। आगे नहीं जाने दिया जा रहा। पुलिस क्या कह रही है आप लोगों को? पुलिस अपने किए हुए पे लिपापोती करना चाह रही है, ताकि जो अपनी बात हम अपने मन से, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के बारे में हम जाके बता सकें, तो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यक्रम है, ये रुकने वाला टुकने वाला नहीं है। ये वहाँ जाएगा और जाने के बाद अपनी बात रखेगा, और अगर नहीं मानेंगे तो उसके बाद उसका पूरा विरोध होगा। और घर घर विरोध, हर जिले पे, हर एक मंडल पे। क्या आगे बातचीत चल? हाँ, बात चल रही है। अभी जाने की क्या नाम, जो बात करेंगे वहाँ जाएंगे चिन्हित लोग। तो दिल्ली से आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन भोपाल में भी ऐसा ही प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। मांग भारत सरकार से भी कि बांग्लादेश जिसको हमने पैदा किया, हमने टैक्स दिए 1971 में बांग्लादेश पर टैक्स लगा था, हमें पता है, हमने यहाँ टैक्स भी दिया था। और ऐसे जो है गुंडे मुल्क के साथ जो है व्यवहार होना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। हिंदुओं के लिए एक अलग क्षेत्र बांग्लादेश में खड़ा किया जाए, हिंदुओं की सुरक्षा हो, भारत सरकार उसकी गारंटी दे, हिंदू की माताओं बहनों की, उनके सम्मान की और उनके मंदिरों की, उनकी आस्थाओं की भारत सरकार गारंटी ले, क्योंकि दुनिया में एकमात्र हिंदुओं का देश भारत है। दुनिया में कहीं अत्याचार होगा। You can see right outside the Bangladesh High Commission there are chants of Vande Mataram. The justice for Hindus is their one demand. That's a Republic TV's frame. They're trying to move from one location to the other. Thousands of people outside the Bangladesh High Commission. Hindus displaying their anger. Thousands of them unwilling to move from there, breaking the barricades, telling the police that they will push ahead if they have to, but they cannot be stopped, and that Bangladesh should be taught a lesson. Pictures from Kolkata. There are protests in Kolkata. There are protests in Jammu. There are protests in Delhi over the pictures of Deepu, the Hindu man who was hounded, harassed, tortured, and then lynched in public. Hanged to a tree and set ablaze. I'm going back to Prem Live. Provide justice to the Hindus which are residing at Bangladesh, and the justice for Deepu Das is there. All eyes on the Bangladeshi Hindus are their demand, because the Bangladesh government, the Yunus government have failed to give them justice. आप लोगों की क्या-क्या मांगे हैं? As you can see, there is a huge commotion, there is a huge protest of 100 to 200 people have gathered outside the Bangladesh High Commission. आपकी क्या मांगे हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से? हमारी मांग है कि जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बंद हो। जो यहाँ पे atrocities हो रही है हिंदूज के अगेंस्ट, उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार से ये अपील है कि जो बांग्लादेशी यहाँ पर हैं उनको यहाँ से भगाया जाए। आप लोगों की क्या मांगे हैं मोदी सरकार से, यूनिस गवर्नमेंट? मोदी सरकार से ये बहुत ही बड़ा ये जो प्रदर्शन है वो यहाँ पे देखा जा रहा है। आप लोगों ने ये भी अल्टीमेटम दे दिया है कि यानी बॉर्डर खोल दो, अब हम संभाल लेंगे। बिल्कुल मैडम, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की है कि अगर ये जो अत्याचार नहीं सहा जाएगा, अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है, जो जीतू भाई को हमारे फांसी दी गई है, और अगर इस पे सुनवाई नहीं हो, इस पे मतलब इनके जो फांसी दी है जिन्होंने, इस पे मतलब उनको फांसी नहीं दी जाएगी जीतू जी के हत्यारों को, तो हमें मजबूरन सड़कों पर उतर रहे हैं। आज दिल्ली आए हैं, दिल्ली एम्बेसी आए हैं, जो बांग्लादेश एम्बेसी है, यहाँ से हमें बाहर नहीं जाने दिया, बैरिकेड पार नहीं करने दिया, एक बैरिकेड पार करके आ गए। यदि हमारी
इन्होंने नहीं सुनी तो हमें बांग्लादेश बॉर्डर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपको यूनुस की जो फोटो है उससे भी देखिए, उसको भी मारते हुए, यानी जूतों से और चप्पलों से ये यूनुस की फोटो को भी मारते हुए जो है नजर आ रहे हैं लोग, यानी काफी ज्यादा गुस्सा देख रहे हैं। और ये जूते और चप्पल से ये सुअर से भी अच्छा कीड़ा है, कीड़ा साला कीड़ा है ये, नहीं मुर्गा। इंसानियत के नाम पे कलंक है, इसको फांसी लगा देनी चाहिए चौराहे पे। ये अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, ये हमारा कुछ भी नुकसान नहीं कर रहा। जिस दिन हम जाग गए सारे संगठित हो गए, बांग्लादेश पे भी हम राज करना जानते हैं और करेंगे, वो भी हमारा ही हिस्सा है। और बहुत जल्द बजरंग दल के माध्यम से वहाँ पे हमारी कब्जा होगी। जय श्री राम। ये यूनुस की फोटो जिसे जूते और चप्पलों से जो है वो मारते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी काजल भी दिल्ली से बनी हुई है। काजल, आप जहाँ पे मौजूद है वहाँ से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी शक्ति को सीमित कर दिया जाता है, सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, क्यों? और हम किसी धर्म या संप्रदाय पे कभी भी टारगेट करके हमला या कुछ भी नहीं करते। हमारा एक ही धर्म है, मानवता, और हम हमेशा यही करते आए हैं, लोगों के साथ सद्भावना और सहयोग करते आए हैं। हमारी हत्याएं क्यों? हमारे भाइयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भारत प्यार करना जानता है तो वार भी करना बहुत अच्छे से जानता है। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू हैं उनको भारत वापस बुलाया जाए, और जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको भारत से वापस भेजा जाए। बस हम यही चाहते हैं, सारी सुविधाएं उनकी जो दी जा रही है वो बंद करी जाए। जय श्री राम। Right, you can see right out. Okay, we're getting in these pictures from the national capital, ladies and gentlemen. Let's cut across live. We're losing the audio in between, so the moment we have a static, a clean audio feed, we'll go across live. देखिए, This is ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, और सनातन क्या कहता है, जियो और जीने दो। लेकिन बांग्लादेश में, केरला में, पंजाब में, कश्मीर में कैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके कपड़े उतार के उनकी पहचान करेगी, उनको मारा गया। कभी किसी हिंदू ने किसी मारा है? नहीं मारा, लेकिन हिंदुओं को मारा जा रहा है। हिंदुओं बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है। बैरिकेड चारों तरफ से किया गया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम शांतिपूर्वक हिंदुओं को जगाने का, बांग्लादेश सरकार को एहसास दिलाने का काम कर रहे हैं कि अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, आप चिंता मत करो। अभी तो यह संख्या लाखों में आई है और करोड़ों में हिंदू समाज का लोग इकट्ठे होके इसका विरोध करेंगे और मोदी जी से प्रार्थना करेंगे कि मोदी जी हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ, किसी तरह बचाओ, हिंदुओं को, हमारी बहन बेटियों को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पैरालाइज है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। पुलिस ने इनको भी रोकने की कोशिश की, हालांकि इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। लेकिन इस वक्त ये चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं। यानी आपको दिखेगा कि चारों तरफ से यहाँ बैरिकेड किया गया है। बीच में हिंदू जो संगठन है वो बैठे हुए हैं और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से दीपू चंद्रा की हत्या की गई है, जिस तरीके से बीच चौराहे पर उनको जलाया गया है, उसको लेकर हिंदू लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप, आधे लोग जो है वो बैरिकेड पर भी चढ़ रहे हैं, बैरिकेड से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शन साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सुबह 11 बजे से ये प्रदर्शन हो रहा है हनुमान चालीसा के बाद। हिंदू जो है आगे बढ़ने के लिए जो है लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड आप देखेंगे तो लगा हुआ है, बैरिकेड से आगे लोगों को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और तस्वीरों में साफ तौर पर आप देखेंगे तो इतना कंट्रोल कर दिया ना, ये ठीक है। मैं हटूंगा, सब चले जाएंगे, सब ऊपर आ जाएंगे। मैंने इतना कंट्रोल कर रखा ना, आप ज्यादा वो मत करो। आप इतना कंट्रोल करते हैं बहुत है, वरना ये कभी गिरा दे तो कब का गिरा देंगे। ये मैं बैठा हूँ तो नहीं गिरा रहे हैं, ये सारे मेरे कार्यकर्ता हैं। मैं बजरंग दल का दिल्ली का अध्यक्ष हूँ, इसलिए बैठा हूँ। मैं जिम्मेवार कार्यकर्ता हूँ, आप चिंता मत करें। नहीं, बहुत पीछे जा चुके हैं, चले आएंगे जी। पर
जो लोग हैं बैरिकेड पे बैठे हुए हैं उनका साफ तौर पर कहना ये है कि उन्होंने पूरी भीड़ को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रखा है, वरना ये बैरिकेड तोड़कर भी लोग आगे बढ़ने को तैयार है। यानी लोगों में इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू चंद्रा को मारा गया कि लोग बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। यहाँ के विजुअल्स आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेयरिंग के हिसाब से जो है वो बैरिकेड किया हुआ है। यहाँ पर आप इधर से चलेंगे और साफ तौर पर आपको दिखेगा कि काफी दूर तक यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए, यानी यहाँ पर पूरे तरीके से बस जो है तैनात की गई है ताकि कोई आगे ना बढ़ पाए। The protesters demand the atrocities which is going on against Hindus in Bangladesh, to serve them justice, to serve them protection. The protesters are demanding that Yunus government must give protection to the Bangladeshi Hindus. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश के अंदर जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। दीपू दास की जो निर्मम हत्या हुई है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी होनी चाहिए जल्द से जल्द। और भारत सरकार को भी बांग्लादेश पे कड़ी से कड़ी, चाहे सैन्य कार्रवाई पड़नी पड़े वो भी करनी चाहिए, सेना के माध्यम से करे, एयर स्ट्राइक करे, कुछ भी करे, हिंदुओं को वहां पर बचाए। Now this is not just a demand, this is not just a call, this is now have turned into a movement. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, लगातार बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चुन चुन मारा जा रहा है, और जो हमारे हिंदुस्तान में नेता बैठे हैं जो SIR का विरोध करते हैं, अरे शर्म करो, बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुम हिंदुस्तान में रखना चाहते हो, और हम चाहते हैं जो बांग्लादेश में दीपू दास के अगेंस्ट जो हुआ उसके बारे में क्या? अगर उसने गलती करी थी तो फांसी की सजा देते, उसको लटकाए थे फांसी पर। ये क्या मतलब होता है कि उसको जला दो, उसको मार दो? ऐसा नहीं सहन करा जाएगा। बहुत हुआ। अब बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर जुल्म जो हो रहा है वो बंद होना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के फालतू कुत्ते मत बनाओ, पाकिस्तान के चारों पे मत चलो, नहीं तो पाकिस्तान वाला हाल हमारी भारतीय सेना घुस के करेगी बांग्लादेश के अंदर। Yeah, you can see there is a huge protest which is going on. I will ask my VJ to show us around. There is a huge protest has been going on outside the Bangladesh High Commission, and there are huge number of protesters who has gathered. We'll go back to Prem there. Ladies and gentlemen, the situation is getting serious. Situation getting very serious outside the Bangladesh High Commission there. Hindu groups unwilling to hold back, saying we will not, this time we will not step back. And it's time that we teach Bangladesh a lesson. Yunus government that allowed radicals. I'm going across to Komal. Another live feed coming in. Let's cut across live. कर दी जाती है, बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ऐसे में वही गुस्सा, वही आक्रोश जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साधु संत समाज के लोग जो है वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लगातार आगे बातचीत जो है वो भी की जा रही है कि उन्हें जो है एम्बेसी की तरफ जाने दिया जा सके। यानी यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एम्बेसी है, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही है। और ऐसे में देखिए जो प्ले कार्ड्स है, जो तख्तियाँ हैं, अलग अलग मैसेजेस जो है इन प्ले कार्ड्स और तख्तियों की तरफ से दी जा रही है कि अन्याय के खिलाफ जो है अब हम खड़े होंगे, अब हम शांत नहीं बैठेंगे। मैम, जैसे आप देख रहे हैं कि एक हिंदू के साथ इतने बुरी तरीके से अत्याचार करके उसको मारा गया जलाकर, हमारी यही मांग है कि अब सरकार को अधिक से अधिक प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जिससे चुप्पी तोड़ने के लिए भी देखिए आप जो यहाँ पे तख्ती लेके पहुंचे, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि चुप्पी अब तोड़ो भाई, अब नहीं सहा जाएगा। हर 2 महीने में ऐसी तस्वीर सामने आती है बांग्लादेश जी। जैसे सरकार एक कानून लाई थी CAA कि जो भारत के जो हिंदू लोग हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, तो वो समय आ गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको हमारे देश से निकाला जाए, और जो पीड़ित है पाकिस्तान या बांग्लादेश अन्य किसी जगह पर, उनको भारत में लाया जाए ताकि वह अपना जीवन सुरक्षित तरीके से बिता सकें। CAA NRC आ रहा था तो जितने भी वामपंथी दलों की बात करें, विपक्ष की बात करें, उनका रोना जो है सड़कों पर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन जब हिंदुओं को वहाँ पे अत्याचार होता है, निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है, तो सवाल यही है कि आखिर ये वामपंथी, ये विपक्षी दल कहाँ होते हैं? देखो जी, ये बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है वो तो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, जिससे निर्दलीय हत्या करी गई है दीपू जी की, वो बहुत ही मतलब सोच करके, जैसे अयोध्या कांड हुआ था उसमें भी देखा होगा हिंदुओं को जला के हत्याकांड करा था, तो ये वैसी सोची हुई शादी से इनकी मानसिक जो दृष्टि चल रही है, और कब से और अब तक ऐसी यही चलती आ रही है। मैं मोदी सरकार से और अमित शाह से निवेदन करूंगा, ये जितने भी दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से खदेड़ा जाए, एक एक करके चिन्हित किया जाए, खदेड़ा जाए बांग्लादेशी घुसपैठियों को। यही मांग जो है वो लगातार अब दिल्ली की सड़कों पर जो है हिंदू संगठनों की तरफ से जो है मांग उठने लग गई है कि जो बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से जो घुसपैठी जो हमारे देश में रह रहे हैं,
अब उनकी कोई जगह नहीं है और उन्हें जो है बाहर कर देना चाहिए। और ये एक बार आगे यहाँ पे लिए चले, तस्वीरें आपको दिखाए तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं, यहाँ पे सरदार जी आपको नजर आ रहे हैं बैरिकेडिंग में बैठे हैं। कोशिश बातचीत यही है कि बस हमें आगे जाने दे दिया जाए, हम आगे जाए और वहाँ पे हम जो है हमारा बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करें। लेकिन सवाल ये भी है जिस तरह से यहाँ पे लोग देखिए बिल्कुल आगे यहाँ पे हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। मुकेश थोड़ा इधर आइएगा, क्योंकि वहाँ पे लोग जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। पुलिस से क्या कह रही है, पुलिस आगे क्यों नहीं जाने दे रही है? ये कह रहे हैं कि वहाँ नहीं जाने देंगे, ये हिंदुस्तान का देखिए बांग्लादेश में जो दीपू दास के साथ हुआ ये बहुत बड़ा घटना है और भारत इससे सबक सीखना चाहिए। भारत के सनातनी को सबक सीखना चाहिए। लगभग 1.5 साल से भारत में बांग्लादेश भारत के प्रति आक्रमण करता रहा है। हमारी मंदिरें तोड़ी, हमारी कई मठे तोड़ दिया। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं मांग करता हूं कि वहां का जो प्रधानमंत्री है यूनुस उसको जवाब देना चाहिए। और मीडिया के माध्यम से मैं यूनुस को बताना चाहता हूं कि यूनुस अब बंद करो, बहुत दिन हो गया है। अगर तुम एक मारोगे तो हम 50 बांग्लादेश। आप क्या कहना चाहिए? हिंदू सहिष्णु है और हिंदू की सहिष्णुता की परीक्षा आपने पूरे विश्व में देख ली है। आज जिस प्रकार से पूरी मानवता के लिए एक कलंक का कार्य हुआ है, सारे विश्व के मानवता के ठेकेदार अभी मौन हैं, लेकिन सबको सावधान रहना चाहिए, सबको सतर्क रहना चाहिए। जो हिंदुओं के साथ आज टारगेट करके जो हो रहा है उस पर पूरा रोक लगना चाहिए। The number of protesters are increasing right now. What we can see outside the Bangladesh High Commission, and their demand is one to अपने अपने भगवान हैं, जिसको मानना है वो उसको माने। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी ये बात जो है, जो कि एक्चुअल में सही है, लेकिन उसी की मौत की वजह बन जाएगी। हर 2 महीने में ऐसी तस्वीरें आ रही है, कोई स्थायी समाधान भी नहीं निकल पाता है। आखिर क्या किया जाए, फिर क्या इलाज होगा? ये देखिए, ये जितनी भी हत्याएं बांग्लादेश में आज हो रही हैं, सब सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। ये प्लानिंग के तहत हो रही है। वहाँ किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी होता है, सारा दोष वो हिंदुओं पर डाल देते हैं। इस नक्सली सरकार को, जो भीख में भारत ने इनको 1971 में बांग्लादेश बना के दिया, इस भिखारी सरकार को मेरा नरेंद्र मोदी जी से एक निवेदन है कि इस भिखारी सरकार को भीख देना बंद करे। Taking a short break, ladies and gentlemen, the situation is getting serious outside the Bangladesh High Commission. They've been attacking Hindus in Bangladesh, and now Hindus are fighting back in India, outside the Bangladesh High Commission, asking Dhaka to fall in line. Live coverage continues. थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, QSMTHE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से